Dear students, now I am going to teach you sequence of tense, which is very essential or indispensable for every student, or especially for the student those are going to face the civil service examination. Now I am going one by one. You should practice it, or इन टाइम आई ऑल्सो टेल यू इन हिंदी. मैं आपको हिंदी में भी बतलाऊंगा. नाउ लुक एट दिस. हियर इज द सीक्वेंस ऑफ टेंस. यू प्रीवियसली नो what is tense, how many tense, and the use of tense. But here you will learn the sequence of tense. Okay. Now first, here is the first. If the principal clause in the past tense, the subordinate clause must be in the past tense. If the principal clause is in the past tense, the subordinate clause must be in the past tense. First you look here. It is the PC, principal clause. Here say I told him. I told him. Here told is verb to, so that it is the past tense. It is in the past tense. Here that I was, it is the subordinate clause. You look at here, I was, it is in the past tense. So here if the principal clause in the past tense, ये देखिए ये past tense में है, तो उसके बाद के आने वाले clause must be in past tense. हो गया. Next और एक एग्जाम्पल ले लें. I knew, past tense verb to, know, knew, known. यहाँ पर देखिए न्यू है. I knew that he would deceive me. You can't write here you will, so that here the principal clause देखिए principal clause past tense में है, subordinate clause must be in the past tense. Okay. Next part 2 में देखिए, if the principal clause is in the past tense, सबॉर्डिनेट क्लॉज जो आने वाला क्लॉज है, अगर उसमें फॉलोड करता है हैबिचुअल एक्शन, अ कोटेशन, साइंटिफिक लॉ, इट विल बी इन द प्रेजेंट टेंस. अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है, ए प्रिंसिपल क्लॉज, इट इज द प्रिंसिपल क्लॉज. द टीचर सेड, इट इज द प्रिंसिपल क्लॉज. नाउ इट इज पास्ट टेंस अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल. अगर हम पहले रूल को देखें तो ये पास्ट टेंस में होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा. इसने कह दिया अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में साइंटिफिक ट्रूथ होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ भी होगा, साइंटिफिक होगा, और कोटेशन अगर होगा, तो इसमें प्रेजेंट टेंस में हो सकता है. देखिए दैट अर्थ मूव्स राउंड द सन. हियर द टीचर सेड that earth moves around the sun. ये प्रेजेंट टेंस में, वर्ब 1 में है, प्रेजेंट टेंस में है. सो इट इज द प्रेजेंट टेंस बिकॉज इट इज द साइंटिफिक फैक्ट. नाउ he said it is a past tense that he is an early riser. It is a habitual action, so it is in the present tense. Here is the present tense, here is past, here is the present also. But remember only one thing, in the time of universal truth or quotation, scientific law, you can write present tense. Now in the subordinate clause again, Gandhi said that honesty is a good policy. You can't write then honesty was a good policy. Honesty is a good policy. Okay. Now next, if the principal clause is in the present tense, अगर principal clause present tense में होगा, the subordinate clause may be in any tense, और subordinate clause किसी भी tense में हो सकता है. Now देखो यहाँ he says ये present tense है, present tense, और आने वाला clause यानी कि subordinate clause may be in any tense, एक कोई भी tense में हो सकता है. He said that राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग. इज सिंगिंग ए सॉन्ग, उसने कहता है कि राधा गाना गा रही है. ओके. शी विल से दैट. नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी विल से दैट, इट इज इन द फ्यूचर टेंस. नाउ हियर इज दिस फ्यूचर टेंस
Radha sang a song. Now the principal clause is in the future tense, but the subordinate clause, लेकिन subordinate clause किस में है? verb to यानी कि past tense में है. According to the rule, हम रूल के अनुसार ये जानते हैं, if the principal clause is in the present tense, the subordinate clause may be in any tense. यहाँ पर ये प्रूव हो रहा है. देखिए, you will say, फिर यहाँ पर ये फ्यूचर में है, you will say फ्यूचर इंडिफिनिट में है, that he was a dull student. He was a dull student. Now it is clear. It is clear. Now first, second and third, you should use it and make a practice. Make practice. Next, look at here. If the subordinate clause is introduced by the conjunction list, it followed by should, not by may. अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज लिस्ट से लिस्ट आता है उसमें, इट विल फॉलो शुड, इसमें मे नहीं होगा. देखिए यहाँ पर सेंटेंस, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, लिस्ट यू शुड, यहाँ पर शुड है, देखिए शुड, लिस्ट यू शुड फेल, यहाँ पर शुड होगा. लिस्ट ऑलवेज फॉलो टू शुड हर सेंटेंस में. नेक्स्ट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, हेल्थ, लिस्ट यू शुड फॉल इल. देखो यहाँ पर टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, लिस्ट, यहाँ लिस्ट है, यहाँ शुड फॉल इल, इट इज करेक्ट. सो अगर आप सेंटेंस में देखते हैं वहाँ में आ गया है तो उसमें वहाँ शुड करना होगा. नेक्स्ट, इफ टू एक्शन इज टेकन प्लेस इन फ्यूचर वन आफ्टर द अदर, अगर दो एक्शन फ्यूचर का होता है एक सेंटेंस में, एक के बाद दूसरा, तो पहला सेंटेंस देखिए कि अगर ऐसा होता है, इफ इट विल रेन आई शैल नॉट गो टू कॉलेज, यहाँ पर है देखिए आई शैल नॉट गो टू कॉलेज. इफ इट विल रेन, यहाँ पर भी विल है और यहाँ पर शैल है, यानी कि दोनों फ्यूचर में है. तो ऐसे सेंटेंस में पहला सेंटेंस होगा इफ इट रेन्स, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट, नहीं तो कह दें सिंपल प्रेजेंट में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा. नेक्स्ट फ्यूचर में होगा आई शैल नॉट गो टू कॉलेज. ओके राइट, हियर इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू कॉलेज, यहाँ पहला सेंटेंस रॉन्ग है और नेके से करेक्ट है. ओके करेक्ट. नेक्स्ट, इफ यू विल वर्क हार्ड, यहाँ पर भी विल है, यू विल सक्सेस, यहाँ पर भी विल है. तो फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा, यानी कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट. और इफ यू वर्क हार्ड हो गया, यू विल वर्क हार्ड नहीं होगा, यू विल सक्सेस, हियर इज दिस, यू विल सक्सेस. ये सेंटेंस और ये सेंटेंस देखिए, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में, ये फ्यूचर में. फिर एक बतला रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इफ टू एक्शन इन ए सेंटेंस आर शोन हैपनिंग इन द पास्ट वन आफ्टर अनदर, अगर दो एक्शन होता है पास्ट में एक के बाद दूसरा, अगर दो एक्शन होता है पास्ट में एक के बाद दूसरा तो क्या होगा. देखिए फर्स्ट एक्शन, देखिए पहला एक्शन, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट हैड डाइड, एक इसमें है पास्ट, पास्ट परफेक्ट में है, परफेक्ट में है. दो बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, एक इसमें है पास्ट इंडिफिनिट में है, पास्ट इंडिफिनिट में है. यहाँ देखिए द पेशेंट हैड डाइड, पहला है पास्ट परफेक्ट, सेकेंड एक्शन जो होगा वो पास्ट इंडिफिनिट में होगा, वहाँ पर पास्ट परफेक्ट नहीं होगा. इसी तरह और एक सेंटेंस एग्जाम्पल, आई हैड रीड माई बुक, यहाँ पर ये भी है पास्ट परफेक्ट में. व्हेन ही कॉल्ड ऑन मी, व्हेन ही कॉल्ड ऑन मी, यहाँ पर कॉल जो है वर्ब टू है, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट है. इसका मकसद हुआ अगर पहला सेंटेंस
पास्ट परफेक्ट में है, उसके बाद का आने वाला सेंटेंस वो किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट में होगा। नाउ इट इज क्लियर, इट इज कॉल्ड द सीक्वेंस ऑफ टेंस। आई ऑलरेडी हैज फिनिश्ड इट, मैंने ख़त्म कर दिया इसे। यहाँ से आपको जितना मैं दे रहा हूँ मेरे सीरीज में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब देखिएगा मैं सीरीज में दिया हूँ कि लिस्ट दिया हूँ, उसके बाद मैं सूट का इस्तेमाल किया हूँ कहाँ पर, जहाँ कॉमन एरर्स का बात आया है। सो दैट आई होप दैट यू विल फॉलो माई चैनल और सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट।